Welcome to the last session on the course Prayer and Intercession. Welcome those of us who've joined online. Good morning, ma'am. Good morning. आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सबको इस छत्र में स्वागत है। Okay, so we've been learning a lot of things. हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीखते आ रहे हैं। Hope this course has been a blessing to you personally and you'll be able to apply it all the days of your life. आशा करते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम जो है आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बना हो और हम ये भी आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में इसका लागू करेंगे। So this is a very practical course. Like whatever we are learning, we just apply every day and every season, every week of our lives. ये जो है ऐसा पाठ्यक्रम है, बहुत ही व्यवहारिक है। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको जो अपने दिनचर्या के जीवन में जो है उसे हम लागू कर पाते हैं। We might all be in different seasons of life, different situations in life. Some of us are in the ups of life, some of us are maybe in the lows of life, but all of us are called to pray. Amen. Amen. हम सब जो है अलग अलग प्रकार की स्थितियों में हो सकते हैं, परिस्थितियों में हो सकते हैं, कोई ऊंचाई में, कोई नीचे में, किसी भी तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन हम सब जो है प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। Let's pray before we begin. आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord. We praise you. We worship you, Lord. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। Thank you for your presence in our midst, Lord. हमारे बीच में आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, that you have chosen to reveal yourself to us, Lord God. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने आप को हम पर प्रकट करने की चुनाव किए हैं। Father, we thank you, Lord, that with the anointing within us is teaching us and enabling us by your grace, oh God. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो अभिषेक हमारे अंदर है वो हमें सीखने के लिए मदद कर रही है। इसके लिए Father, even today, Lord, even as we are going to learn from your word, आज भी प्रभु जबकि हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं, Father, I pray that the Holy Spirit will enable each of us to grasp the truths, the revelation of every truth that you want us to know, Lord. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें से प्रत्येक जो है आप जो आपके वचन के द्वारा प्रकाशन देना चाहते हैं प्रभु, उसे हम प्राप्त कर पाए। Speak to us, Lord. हमसे बात कीजिए प्रभु। Move in our midst, Father. हमारे बीच में चलिए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for hearing our prayers, oh God. हमारा प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Today we'll be learning about fasting. आज जो है हम उपवास के बारे में सीखने जा रहे हैं। So fasting is also one of the spiritual disciplines. Just like we meditate God's word, we go to God and pray, we worship. So this is also one of the spiritual disciplines. उपवास भी जो है एक आत्मिक अनुशासन है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, मनन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इस प्रकार का उपवास भी एक अनुशासन है। So we see throughout the Bible, the Old Testament and the New Testament, people of God fasted. हम देखते हैं पूरा बाइबल में पुराना नियम, नया नियम में जो परमेश्वर के लोग जो है उपवास किए। So if we look at the New Testament in Matthew chapter 9 verse 14, यदि हम नया नियम को देखें, मत्ती 9वां अध्याय का 14वां वचन। so the disciples of John the Baptist are questioning Jesus, why is it that we fast and your disciples do not fast? यूहन्ना का जो चेले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेले थे, वो यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि हम उपवास कर रहे हैं, आपके चेले क्यों नहीं उपवास कर रहे हैं? So at that time Jesus telling, a time will come when the bridegroom will be taken and then they will fast. तब यीशु मसीह बता रहे थे कि दूल्हा साथ में रहते हुए प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा समय आएगा दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा, तब वे प्रार्थना करेंगे। So we see that Jesus is crucified, he's resurrected, and now he's seated with the Father in heaven. अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूसित हो गया और वो पुनर्जीवित हुए, स्वर्गारोहण होकर परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। So now is the time the disciples of Jesus are called to fast. अभी जो है यीशु मसीह के चेले जो है उपवास करने के लिए बुलाए गए हैं। So Jesus is telling not only his disciples then,
but also those who are being saved now. यीशु मसीह जो कह रहे थे केवल उनके चेलों को तभी के लिए नहीं, आज भी जो उद्धार पाए उनके लिए भी इस बात को कहें। So this lesson that we are going to learn, it will help us to fast in a way that pleases God. हम इसमें ये सीखने जा रहे हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार से हम उपवास करेंगे वो जो है परमेश्वर को प्रसन्न करेगी। So how can we fast meaningfully? हम कैसे अर्थपूर्ण तरीके से उपवास कर सकते हैं, And also the blessings that come with this fast. और इस उपवास के द्वारा जो आशीषें हमारे लिए प्राप्त होगी उसके बारे में भी। Okay, let me ask this question. Why do we fast? मुझे ये सवाल पूछने दीजिए, हम उपवास क्यों करते हैं? I know most of us are practicing fasting, and you fast and you pray. So why do we actually fast? मैं जानती हूँ कि हम में से कई लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे होंगे पहले से ही, तो हम क्यों उपवास करते हैं? Sorry? To draw near to God. To draw near to God, शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए, To keep our body in control. to keep our flesh in control. Yes. Anyone else? To confess. To repent. To repent and confess our sins and draw close to God. Thank you. So these are all the things that we do. That is the reason we fast. ये सारे हम करते हैं, इसी कारण के लिए हम उपवास करते हैं। So if we see in the Old Testament, when they repented, it will be also shown outwardly. Like they will wear sackcloth and they will mourn for their sins. पुराना नियम में जब उपवास करते थे, ये तो पश्चाताप करते हैं, तो वो जो है बाहरी तौर पे देख सकते थे, दिखाई देता था, क्योंकि वो टाट ओढ़ते थे और दुखी रहते थे। So when we are fasting before God, what we are saying is, Lord, I come to you as I am. Forgive my sins and show me who I am in the light of your word. जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं जैसे हूँ वैसे आपके पास आती हूँ और मुझे आपके वचन के द्वारा मुझे बताइए। And I truly want to repent of my sins. मैं सच में अपने पापों से पश्चाताप करना चाहती हूँ। So this is one of the main reasons we get into a focused fast. ये सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके लिए हम उपवास में केंद्रित होते हैं। Because the Bible says the heart is very crooked and it is so deceitful. क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो मन है सबसे बहुत ही दुष्ट है। So I don't know how many of us have heard this. In the world, they will keep saying, follow your heart. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं, इस संसार में जो बोलते हैं कि अपना हृदय का पीछा करो या पालन करो। Whom are we called to follow? हम किसका पालन करने के लिए बुलाए गए हैं? Follow Jesus. यीशु मसीह का पालन करने के लिए। So many times in our heart, our own voice will be speaking and the word of God will be speaking. But to listen to God, to pour out our heart before Him, we need to fast. तो कई बार जो है हमारे हृदय से शब्द उठती है, परमेश्वर का आवाज आता है, तो इसको जानने के लिए हम जो है अपने हृदय को उंडेलने के लिए परमेश्वर के सम्मुख को उपवास करते हैं। And also it strengthens our focus in the Lord. और ये परमेश्वर में हमारे केंद्र को भी मजबूत करती है। So what we are saying is, Lord, I want to pursue you above everything in this world. तो हम ये क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर से कहना चाहते हैं कि परमेश्वर संसार के सारे चीजों को छोड़कर मैं आपका ही पीछा करना चाहती हूँ। I want to know your word. I want to know your guidance in this matter. इस विषय में जो है मैं आपका वचन को जानना चाह रही हूँ, आपका इच्छा को जानना चाह रही हूँ। And another reason why we fast is it increases our faith in God. और एक कारण जिसके लिए हम उपवास करते हैं, हमारा उपवास करने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। It strengthens our prayer life and devotion to God. हमारा प्रार्थना जीवन को मजबूत बनाती है और हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा श्रद्धा को बढ़ाती है। So if we read of an incident in Matthew chapter 17 verses 20 to 21, हम मत्ती के 17 अध्याय में देखेंगे, जो 21 से लेकर 22 वचन में देखते हैं। 17 अध्याय, Matthew 17 verses 20 and 21. 20 और 21, मत्ती 17 अध्याय का 20 और 21। So what is happening there is a man is coming to Jesus' disciples for the healing of his epileptic son. हम देखते हैं कि वहां एक मिर्गी से ग्रस्त एक बेटे के लिए एक पिता उनके यीशु मसीह के चेलों के पास आ रहा है। So he falls into the fire and water and he hurts himself.
वो लड़का जो है आग में गिरता है, पानी में गिरा देता है, उसको अपने आप को बहुत चोट पहुंचती है, but the disciples are not able to heal him. लेकिन चेले जो है उस लड़के को चंगा नहीं कर पाए। So at that time, Jesus mentions of lack of faith. तब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इसलिए इसको चंगा नहीं कर पाए तुम्हारा विश्वास के गति के कारण। Addresses, oh faithless and perverse generation. तो कह रहे हैं कि विश्वास बिना और हटीले लोगों। So we see that the disciples come to Jesus again and ask him privately, and he says, because of your unbelief. तो हम देखते हैं कि चेले जो यीशु मसीह के पास अकेले में आकर पूछ रहे हैं हम क्यों नहीं कर पाए, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वास के गति के कारण। So if you have faith just like a mustard seed, if you look at the mountain and say it will move, it will be done. यदि राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास हो तो आप पहाड़ को देखकर कहो कि सरक कर हट जाए तो वो हट जाएगा। So we see Jesus saying this kind does not go out except by prayer and fasting. और यीशु मसीह बता रहे हैं कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। So we understand very clearly that while we fast, it intensifies our faith and gives us a strong prayer life. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो विश्वास को जो बढ़ाती है और प्रार्थना जीवन को बहुत ही तीव्र बनाती है। So there is a progression in our faith. हमारा विश्वास में जो बढ़ती होती है, So from one level to another level. एक स्तर से अगला स्तर तक। So the next thing is it also develops a discipline. और एक चीज जो है उपवास के कारण हमारे अंदर अनुशासन को विकसित करती है। So we need this discipline to exercise self-control, and self-control is one of the fruit of the spirit. और हमें ये अनुशासन इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमें जो है आत्म संयम होने के लिए मदद करती है, जो आत्मा का फलों में से एक है, वरदानों में से। So while we are fasting, we are bringing our flesh under the subjection of the Holy Spirit. जब उपवास करते हुए हम अपना शरीर को जो शारीरिक लालसाएं जो है हम जो पवित्र आत्मा के अधीन में लाते हैं। See, sometimes even while you're praying, you might not be able to get up in the morning. कभी कभी होता है कि हम प्रार्थना करने के लिए सुबह शायद उठ नहीं पाते हैं। The Holy Spirit wants you to get up and pray in the morning. और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप सुबह उठें और सुबह के समय प्रार्थना करें। What does our flesh say? हमारा शरीर क्या कहेगा? Let us sleep a little longer. और थोड़ा सो जाओ, Let us take rest. थोड़ा आराम करो। We won't hear like don't pray, but the flesh is so strong, it says that you rest a little more. इस प्रकार से शरीर नहीं कहे कि प्रार्थना मत करो, कहे कि और थोड़ा सो जाओ। So to overcome all those fleshly weakness, when we get into a time of fast, the Holy Spirit helps us to overcome our flesh. ये शारीरिक जो कमजोरियों को हमें जीतने के लिए, उस पर विजय होने के लिए हम जो है जब प्रार्थना में जब समय बिताते हैं तब होता है। So as we are being led by the Holy Spirit, we will wait in His presence morning after morning. जब जैसे ही हम पवित्र आत्मा में सामर्थ पाते हुए आज्ञा मानते हैं तो हर सुबह जो है प्रार्थना में बिताएंगे। So we see that fasting deepens our commitment with God. उपवास जो है परमेश्वर के साथ हमारी जो समर्पण है उसको गहरा बनाता है। So there are different types that you can fast. You can take one whole day, or you can just give up one meal. It's up to us to decide that. उपवास जो है अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। आप पूरा दिन के लिए बिना खाए रह सकते हैं या तो एक समय का भोजन को बिना खाए रह सकते हैं। Sometimes people fast for 3 days, कभी कभी लोग के 3 दिन के लिए उपवास करते हैं, sometimes 2 weeks. 2 हफ्तों के लिए भी प्रार्थना उपवास करते हैं। So you can choose whatever that the Lord puts within your heart. आपके हृदय में परमेश्वर जो रखते हैं उसको आप चुनें। So it is not a hard and fast rule that you have to fast for 40 days, you have to fast for 30 days. This is what you have to follow. ये ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि आपको 30 दिन के लिए उपवास करना है या 40 दिन के लिए उपवास करना है, आपको अपने हिसाब से करना है। And we also understand that there are different kinds of fast. हम ये भी समझ पाते हैं कि मतलब अलग अलग प्रकार के उपवास हैं। So you can choose to refrain from food maybe a whole day. आप पूरा दिन के लिए बिना खाए रह सकते हैं। And when you're refraining from food, you choose to spend time with God. और जब आप बिना खाना खाए उपवास करने का निर्णय लिया है तो इस बात को चुनाव करें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए। Sometimes during fasting you can give up your favorite food. उपवास करते समय कभी कभी आपका पसंदीदा जो भोजन है उसको आप छोड़ सकते हैं। So like for example, biryani or ice cream or whatever you like so much, you can give up
those kind of foods. उदाहरण के लिए बिरयानी हुआ, आइसक्रीम हुआ, जो भी है आपको जो पसंद आता है उसको छोड़, उस भोजन को छोड़ते हुए। And the third type of fasting is what I see is very difficult. तीसरी प्रकार का जो उपवास है वही मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन है। Giving up on gadgets. हमारी जो फोन या हमारी चीजों को छोड़ दे, बिना इस्तेमाल किए रखना। Choosing not to spend time in WhatsApp. व्हाट्सएप में समय बिताना छोड़ना। Choosing not to spend time on social media. सोशल मीडिया में अपना समय गंवाना छोड़ना। Choosing not your time not to chat with friends in the phone. फोन पर दोस्तों के साथ बातचीत चैट करना छोड़ना। So I think that discipline you're learning here right now. मुझे लगता है कि उस अनुशासन को आप लोग यहाँ पर अभी सीख रहे हैं, That will surely help you. वो निश्चित तौर पे आप लोगों की सहायता करेगी। See, even though we have these type of fasting, it is only the Holy Spirit who can enable us to fast and pray. जबकि इतना सारे अलग अलग प्रकार के उपवास है, ये केवल पवित्र आत्मा ही है हमें उपवास करने के लिए सहायता कर सकता है। So even on the in the device, you can keep your hand and just ask the Lord, Lord, help me not to spend time in social media, not on these devices. Help me, Lord, to spend time with you. तो आप अपने उपकरणों पर, डिवाइसेस के ऊपर हाथ रखकर कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, मैं इस पे समय अपना ना गवाऊं। Be it a laptop or a tab or a mobile phone, just ask the Lord, receive grace from Him. Lord, today I just want to walk with you. Help me, Lord. तो आपका मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या टैब हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका चीजें, उस पर हाथ रखकर आप मांगे, प्रभु मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सहायता कीजिए इसमें से अलग होने के लिए। I don't want to get distracted by what I'm seeing or what I'm watching, Lord. मैं जो देख रही हूँ या मैं जो सुन रही हूँ उसमें मैं विचलित नहीं होना चाहती हूँ। So we set apart that time and we spend time with God. हम उस समय को अलग करते हैं और उस समय को परमेश्वर के सम्मुख बिताते हैं। And the next thing is a fasted lifestyle. और एक जो है एकदम उपवासित जीवन शैली। So what does it mean by a fasted lifestyle is for, you can choose it for a season, maybe for 6 months or for a lifestyle or for few years. This is how I will be. उपवास का जीवन यानी आप जो है 6 महीने के लिए उपवास करने का चुन सकते हैं या सालों के लिए चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। So this concept we take from the Bible by Nazarite vow. इसको जो है हम बाइबल से लेते हैं, जो नाजरी जो उपवास है उसके बारे में। So there are few people of God who are called the Nazarites, और कुछ परमेश्वर के लोग हैं जो नाजिर कहे गए, like Samuel, Samson. शमूएल था, शमशोन था। So what happens is their parents take a vow before God that they will not give wine to their child, they will not drink anything that is of wine derivatives, and they will not put razor to their hair. तो उनके माता पिता ने इस प्रकार का शपथ लिए थे कि उनके बच्चे की जो बाल नहीं कटाई जाएगी, उन्हें दाखरस नहीं पिलाएंगे, इस प्रकार की सारी बातें उन पर लिए थे। So what happens is when you see a Nazarite, you will definitely know that he set apart for God. जब एक नाजिर को आप देखेंगे तो पहचान पाएंगे कि ये जो है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है। So for us also, we are called to live a holy life. हमारे लिए भी हम जो है पवित्रता से जीने के लिए बुलाए गए हैं। So fasting helps us to live a holy life by overcoming our sinful desires. उपवास जो है हमें जो है हमारा जो पाप में जो लालसा है उससे जयवंत होकर पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करती है। So we all can desire for this fasted lifestyle. हम में से हर एक जो है इस उपवास का जीवन का चुनाव कर सकते हैं। The Bible says, "Be holy because I am holy." बाइबल बताती है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। See, we are righteous because of the blood of Jesus, because of the finished work of the cross. We have received everything by grace, but we are called to live according to God's word. हम जो है हमारी धार्मिकता जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा हमारी सारी आशीषें हैं, लेकिन हम जो है परमेश्वर के लिए अलग किए गए जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। We cannot conform to the standards of the world. हम जो इस संसार के सदृश्य नहीं बन सकते हैं। So when we choose to fast and spend time with God, we are able to choose God above everything else. जब उपवास कर परमेश्वर के समक्ष समय बिताने का चुनाव करते हैं तो आप जो है बाकी और चीजों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को चुना है। And we must understand one thing,
Fasting does not change God, it changes us. हमें एक बात को समझने की जरूरत है, हमारा उपवास जो है परमेश्वर को नहीं बदलती, वो हमें बदलती है। It changes our motives before God. परमेश्वर के सामने हमारे इरादों को बदलती है। So in the initial years, while I used to fast, I used to think, if I fast, I will get what I desire. शुरुआती वर्षों में मैं ऐसा सोचती थी, अगर मैं उपवास करूंगी तो मैं जो चाहती हूँ उसे मैं प्राप्त करूंगी। That's a very wrong motive. वो जो है बिल्कुल गलत इरादा है। So we fast because we want to get closer to God and be more like Him. और हम इसलिए उपवास करते हैं, हम परमेश्वर के नजदीकी में जाने जाते हैं और उनके जैसे अधिक बनना चाहते हैं। So we must understand that fasting is a lifestyle that God has taught us in order to live a life pleasing to Him. उपवास जो है परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा जीवन शैली को लाए ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन जी सकें। And we saw that while we are praying, we are called to go into the secret place and close the door and pray. So similarly, while we are fasting, we don't have to advertise that we are fasting. जैसे प्रार्थना करते हुए जो हमें गुप्त स्थान में जाना है, अपने दरवाजे को बंद करना है, वहां प्रार्थना करना है, इस प्रकार से उपवास भी जब हम उपवास करते हैं तो उसके बारे में लोगों को डिंडोरा पीट के बताने की जरूरत नहीं है कि हम उपवास कर रहे हैं। So can I request one of us to read Matthew chapter 6 verses 16 to 18? क्या मैं आप में से एक को पूछ सकती हूँ? मत्ती 6 अध्याय के 16 से लेकर 18 तक के वचन पढ़े, वो आपके नोट्स में है, पेज नंबर 92 में। मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। Amen. So when you're fasting, you don't have to look tired, and because you're tired, people might ask what happened, and then you'll have to tell the situation. See, there's nothing wrong in telling that you're fasting, but what I'm saying is you don't have to tell them, I'm fasting for so many days, I'm doing this. You don't have to tell or self-propagate ourselves. उपवास करते हुए आप थके हुए ना दिखें कि लोग आपसे पूछें कि आप क्यों थके लग रहे हो, तो अब उनको आपको बताना पड़ता है कि मैं उपवास कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, उपवास करना कहना मतलब गलत है, लेकिन अपने आप को बताने के लिए कि मैं इतने दिन प्रार्थना उपवास कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसे बताते ना घूमे। So we are not fasting for men. हम जो उपवास कर रहे हैं लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। So we are fasting before God, and God who sees us in secret will surely reward us openly. हम परमेश्वर के सम्मुख उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर हमें गुप्त में देख रहे हैं और खुले तौर पे हमें प्रतिफल देंगे। So does the Bible say sometimes you'll receive your reward, not always? क्या बाइबल ऐसा बता रही है कि कभी कभी आपको प्रतिफल मिलेगा, ना ही हमेशा मिलेगा? Whenever we fast, heaven takes notice. It is recorded already in heaven. जब भी हम उपवास करते हैं, इसे जो है स्वर्ग ध्यान देता है, और जब हम उपवास करते हैं उनके पास लिखी रहती है। And God is not a man to lie. और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। So there's so much of power in prayer and fasting. प्रार्थना और उपवास में बहुत ही सामर्थ्य है। So we understand that while we fast, it is God who takes notice and rewards us. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर उसका ध्यान देते हैं और उसका प्रतिफल हमें देते हैं। And also while we fast, we have another blessing that our years that are lost will be restored. उपवास करने के द्वारा अब और एक लाभ है, जो साल हमने खो दी है वो हमें फिर से मिलता है। Because the Lord is willing to pour out mightily His Holy Spirit over each and every one of us. क्योंकि परमेश्वर जो है हम प्रत्येक के ऊपर अपना आत्मा उंडेलने के लिए इच्छा रखता है। So when we seek God wholeheartedly, He will fill us with the power of His Holy Spirit. जब हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरेंगे। So we cannot live a life pleasing to God without the power of the Holy Spirit. Amen. आमीन। हम जो है परमेश्वर के सामर्थ बिना परमेश्वर को प्रसन्न करने के जीवन नहीं जी सकते हैं। And that is the greatest privilege and the greatest gift that we have.
वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य और सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है। So we can ask God while we are fasting and praying, we can ask God, Lord, pour out your spirit. जब हम उपवास करके प्रार्थना करते समय परमेश्वर से हम मांग सकते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मा को हम पर उंडेलिए। Help me to fulfill all the purposes that you have for me in this season, God. इस समय में आपका जो उद्देश्य मेरे लिए है उसे पूरा करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। So now we'll see from Isaiah chapter 58 verses 1 to 14, what is the fasting that pleases God. हम अभी देखेंगे यशायाह के 58 के अध्याय के 1 से लेकर 14 तक के वचन में किस प्रकार का उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करती है। So God says this is the right way to fast. परमेश्वर बता रहे हैं कि यही उचित तरीका है उपवास करने का। So we are called to prepare ourselves. We are called to prepare our hearts. हम जो है अपना हृदय को तैयार करने के लिए बुलाए गए हैं। So if God is telling that this is the way that you have to fast, we will read from these verses and understand what he says. परमेश्वर इस प्रकार से हमें उपवास करने के लिए कहे बताए हैं तो हम इन वचनों को पढ़कर इसे समझेंगे। First thing is we'll see how to prepare ourselves for this fast. हम पहली बात जो देखेंगे हम इस उपवास के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। And then we decide the purpose of our fast. For whom are we going to fast? For what reason? Is it for you personally, or for someone else, or for a city, or for a nation? तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस कारण के लिए हम कर रहे हैं, क्या हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं या किसी शहर के लिए कर रहे हैं। And then we'll see the promises and blessings of this chosen fast. और उसके बाद हम देखेंगे कि इस चुनाव किए हुए उपवास के द्वारा हमें क्या आशीषें मिलती है, प्रतिज्ञाएं। So please turn your Bible and read from Isaiah chapter 58 verses 1 to 14. आइए अपना बाइबल को खोलें यशायाह के 58 अध्याय के वचन 1 से लेकर 14 तक। So you can take turns, maybe 2 verses. आप लोग बारी बारी से पढ़ सकते हैं, एक एक व्यक्ति 2-2 वचन ऐसा पढ़ सकते हैं। यशायाह 58 अध्याय के वचन 1 से लेकर 14 तक। आपने तो बात लगाए परंतु सुने नहीं लिए, हमने सुनाया परंतु उन्हें ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कभी कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से उसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसमें तुम्हारी प्रार्थना उत्तर नहीं सुनाई देगी। 5 वचन से कोई पढ़े। कोई और 7 और कोई पढ़े। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा
और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। ये चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। माइक में पढ़े। If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not doing your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land, and to feast in the inheritance of your father Jacob. For the mouth of the Lord has spoken. आमीन। Amen. Amen. Thank you. धन्यवाद आपका। So we see the first few verses teaches us how to prepare ourselves for the fast that pleases God. हम देखते हैं कि पहले शुरुआती वचन जो है हमें इस बात को सिखाती है कि किस प्रकार का उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करेगी, उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। See, God is telling us that we need to address certain things in our life, परमेश्वर जो है हमारे जीवन के कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं, that we have to correct ourselves before Him and live a life pleasing to Him. हम परमेश्वर के सामने उसे ठीक करना है और ऐसा जीवन जीना है जो उन्हें प्रसन्न करती है, In order to receive the healing and wholeness and whatever breakthrough that you desire in your own personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में चंगाई, छुटकारा और जिस बात की विजय को आप चाहते हैं उसके लिए। So otherwise, this fasting does not please God. नहीं है तो ये उपवास जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगी। So the first thing is we have to correct our motives before God. सबसे पहली बात जो है हमारा इरादा को परमेश्वर के सामने बदलने की जरूरत है। So is there anything in my heart that displeases God? क्या ऐसी कोई बात है मेरा हृदय में जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है? What I think, what I say, and what I do, is there anything that displeases God? जो कुछ मैं सोचती हूँ, जो कुछ मैं बोलती हूँ, जो कुछ मैं करती हूँ, क्या कुछ ऐसी कोई बात है परमेश्वर को अप्रसन्न करती है? So we understand that you and God, it is between you and God. इस बात को समझने की जरूरत है, ये जो है आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। So our heart is open before God. हमारा हृदय जो है परमेश्वर के सामने खुला है। So we can hide anything from everyone, but not from God. हम जो है कोई भी बात को सबसे छुपा सकते हैं पर परमेश्वर से नहीं। So we can hide it from our best friend, but we cannot hide it from God. हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी उसे छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हैं। So for example, God will tell us to forgive a person wholeheartedly. उदाहरण के लिए अगर परमेश्वर कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण मन से क्षमा करें, So we can shake hands with that person, we can smile at that person, हम उनसे हाथ मिला सकते हैं, उनके ओर देखकर हम मुस्कुरा सकते हैं, but internally the thought process will be like, oh, why did I meet this person? Why should I even see this person today? लेकिन अंदर से हमसे सोच रहे हो कि क्यों मेरे मुझसे मुलाकात हुई, क्यों मैं मुझसे उसे देखा। But what are we showing to the outside world? लेकिन बाहरी तौर पे बाहर की दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं? We are smiling, we are happy, and everyone are thinking, oh, everything is fine. तो हम खुशी दिखा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि हाँ सब ठीक है। Internally, let me wait for a time. Let me give it back to this person. अंदर से हम सोचते हैं कि बस थोड़ी समय ही है, बस मैं अच्छे से बदला दूंगी। This is an example where we can displease God. ये एक उदाहरण है जहां हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। So we are called to correct our postures, correct our motives before God. हम जो है परमेश्वर के सामने अपना स्थिति, अपना इरादा को ठीक करने के लिए बुलाए गए हैं। Or something that you might be watching that is displeasing to God, we need to ask God to help us overcome that. कुछ ऐसी चीजों को आप देख रहे होते जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, तो वहां जो है परमेश्वर से सहायता मांगना है कि इससे निकल आने के लिए। God might be telling us to avoid certain friendships.
परमेश्वर हमसे बता सकते हैं कि इस प्रकार के दोस्ती से दूर रहो। So when we are with them, we might be doing things that displease God. हम उनके साथ रहते हुए शायद कुछ ऐसे चीजें कर रहे होते जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। All these things we have to correct ourselves before God. परमेश्वर के सामने इन सारे चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है। And another thing is we need to have right relationships with people. और एक चीज जो है हमें जो है लोगों के साथ सही रिश्ता होने की जरूरत है। God is so much concerned about his people. परमेश्वर जो है अपने लोगों के प्रति बहुत ही अपना चिंता रखता है, परवाह करता है। So when we talk, we are called to build them up, not tear them down by our words. हम इसलिए बुलाए गए, हम किसी से बात करते हैं तो उनका निर्माण होना है, ना कि उन्हें गिराना है। No, some people, the tone won't be harsh, but the words that they say will prick the heart. कभी कभी कुछ लोगों का शब्द होता है कि उनका शब्द बहुत कठोर नहीं होता है, लेकिन उनका जो शब्द जो है जो हमारा दिल को जो है एकदम छेद देती है। So we should be very careful that we do not hurt others by our words. हमें बहुत ही सावधान पूर्वक रहना है कि हमारे शब्द दूसरों को चोट ना पहुंचे। So especially people who are working with us, people who are working for us, our helpers. Sometimes the people whom we see on the street who are the helpers, we should be very kind to them. ऐसे हमारे साथ काम करने वाले या हमारे लिए काम करने वाले या तो हम सड़कों में हम देखते हैं, उनके ऊपर जो है हम बहुत ही दयालु होना चाहिए। So God is so much concerned about how we treat people with compassion. परमेश्वर इससे बहुत ही चिंतित है कि हम लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। There might be elders in our house and they might really need help. हो सकता है कि हमारे घर में बुजुर्ग लोग होंगे, सच में उनको मदद की जरूरत है। Sometimes they forget what they said and they keep repeating things. कभी कभी बुजुर्ग लोग जो है जो बताए थे उसे भूल जाते हैं और फिर से बार बार उसी बात को बोलते रहते हैं। Sometimes they might not have the spiritual understanding like us. कभी कभी होता है कि उनके अंदर जो है आत्मिक समझ जो हम में है उनमें ना हो सकता हो। But we should never put them down. We should treat them with a lot of respect and gentleness. उन्हें नीचा नहीं करना है, हमें जो है उन्हें जो है बहुत ही कोमलता से और आदरपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है। So another thing is we need to have compassion for the poor and the needy. और गरीबों और जरूरतमंदों के ऊपर हमारी जो है तरस होना चाहिए। So with whatever we have, we can help others. जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। All of us might not be in the same level to help others maybe in a large way, but God has blessed us so much. So we should be kind to the poor and the needy. हम सब एक ही स्तर के नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास अलग अलग स्तर के मतलब जितने भी हैं हम जितना मदद कर सकते हैं, हमें से जितना हो सकता है। Yeah, sometimes it can be our own relatives, our extended family who might need help. कभी कभी हो सकता है कि वो हमारा रिश्तेदार हो या हमारी परिवार के दूर के हो, उनको सहायता की जरूरत हो सकती है। So it can be a small help, like you can send them some food or you can send money, whatever the Lord puts within our heart, we can bless them. वो छोटा सा मदद हो सकता है, थोड़ा भोजन भेजना या थोड़ा सा पैसे देना, इस प्रकार जो भी परमेश्वर आपका दिल में डालता है। And the important thing is we are called to honor God in all that we think, say or do. तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है परमेश्वर को जो है हम सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, इन सारे बातों में परमेश्वर को आदर देने वाले कार्य करना है। So if we do not set right all these things before God, we will not be able to fast meaningfully and we will not be able to receive the blessing from God. इन सारे चीजों को जब हम ठीक नहीं कर लेते हैं तो हम परमेश्वर के सामने अर्थपूर्ण तरीके से उपवास नहीं कर सकते हैं और उस उपवास का हमें फायदा नहीं मिल सकती है। Because God is concerned about our heart more than anything else. क्योंकि परमेश्वर जो है बाकी और किसी भी चीज से बढ़कर हमारा हृदय पर उनका चिंता है। He is willing to bless us, वो हमें आशीष देने के लिए इच्छुक है, but we are called to follow God's way to receive his blessing. लेकिन हम जो है परमेश्वर की जो तरीका है आशीष का उसका पीछा करने के लिए बुलाए गए हैं। So we are called to submit our body as a living sacrifice before God. हम जो है अपने शरीरों को जीवित बलिदान के तौर पे परमेश्वर को सौंपने के लिए बुलाए गए हैं। So even if everyone else is doing something that displeases God, we choose not to do that. तब भी जब लोग जो है परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली बातों को करते हैं, तब उस समय भी हम उसे ना करने का चुनाव करते हैं। So for example, in your college, on the place where you work, there might be gossip going on.
आपके काम करने के स्थान में या तो आपके कॉलेज में, वहां हो सकता है कि चुगली करने की चल रही हो, So people might be judging one another, लोग जो है एक दूसरे का न्याय कर रहे हो, but we should not be part of that conversation. We should not add fuel to the fire. हमें जो है आग में घी नहीं डालना है, उसे और बढ़ाना नहीं है। See, every moment our life is open before God and we are called to live a life pleasing to God. हर एक पल जो है हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने खुला है और हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। We should understand this because it is not only a time of fasting or prayer that we set right before God and then go and live our life as we please. इस बात को समझने की जरूरत है, केवल उपवास के समय परमेश्वर के समूह को हम अपना समय को बिताने का चुनाव किए तभी ये सब ठीक करना नहीं है, उसके बाद जाकर हम जैसा चाहते हैं वैसा जीना नहीं है। See, our 24 hours is open before God. हमारा 24 घंटों जो है परमेश्वर के सामने खुला है। It is few hours that we come here together and you hear these teaching and you're in the public space, but most of the time you're alone. वही कुछ घंटों ये आप सबके सामने हैं, सीख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन के या दिन के अधिकांश समय जो है आप अकेले हैं। The Lord calls us to live a life pleasing to Him. परमेश्वर जो है ऐसे जीवन जीने के लिए हमें बुलाए हैं जो उनको प्रसन्न करती है। So if we live a life pleasing to God and spend time with Him in fasting, यदि हम ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीकर और इस प्रकार का उपवास को हम चुनते हैं, God will come through for us. परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे। So we receive the breakthrough that we are called to receive. हम जिस विजय को प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। We receive healing and wholeness and emotional wellness. हम जो है चंगाई और परिपूर्णता और भावनात्मक चंगाई को प्राप्त करेंगे And there is fruitfulness in whatever that we do. और जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हम फलदायक रहेंगे। And it is something very personal that the Lord's guidance, we will be able to hear God very clearly, step by step. ये बहुत ही व्यक्तिगत है, हम परमेश्वर की आवाज को जो है अगुवाई को जो है कदम ब कदम सुन पाएंगे। So this is what we call as a chosen fast. इसको ही हम कहते हैं चुना हुआ उपवास। So now we'll see few examples from the Bible in the Old and the New Testament. अभी जो है हम बाइबल में से उदाहरण को देखेंगे, पुराना और नया नियम से। So you can see that in page number 85 in your notes. So we see King Jehoshaphat. हम यहोशाफात के बारे में देखते हैं। So when he knew that the people of Judah were under attack, वो जानते थे कि यहूदा के लोग जो है उनके ऊपर आक्रमण हुई है, so he immediately called for a fast. वो तुरंत ही उपवास को बुलवाता है। So they were surrounded by 3 enemy nations and they didn't know what to do. वे जो है 3 शत्रु राजा के द्वारा घेरे गए और वो नहीं जानते थे कि क्या करें। So they immediately fasted and asked for God's guidance. वो तुरंत ही उपवास किए और परमेश्वर से अगुवाई मांगे God gave them the strategy for victory. और परमेश्वर जो है विजय का जो रणनीति है उन्हें दिए। So they did not win by chariots or horses or sword. Instead, by praising and thanking God, वो they won this victory. रथों या घोड़ों या अपना हथियारों द्वारा उसके विजय ने प्राप्त किए, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन्होंने प्राप्त किए। Who gave them the strategy? किसने इस लड़ाई के लिए रणनीति दी? God gave them the strategy because they sought Him in fasting and prayer. परमेश्वर ने उन्हें इस रणनीति को दिए, क्यों? उन्होंने उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को खोजा। See, it is not that that king did not have chariots, he did not have horses, he had everything. ये नहीं कि उस राजा के पास रथ नहीं था या घोड़े नहीं थे, But when the enemy came, he sought God. लेकिन जब शत्रु आए तो उन्होंने परमेश्वर का खोज किया। He did not call his commander-in-chief, the general, and then say, how are we going to fight this? उसने अपना सेनापति को बुलाकर ये नहीं पूछा कि हम किस प्रकार से लड़ने जा रहे हैं। The king is fasting as a community and he's just following what God tells him. राजा भी एक समुदाय के रूप में उपवास कर रहा है और परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसका वो अनुसरण कर रहा है। They received their victory. उन्होंने उस विजय को प्राप्त किए। Another example we'll see is about Nehemiah. और एक उदाहरण जो देखते हैं नहमाया के बारे में। So when Nehemiah heard about his people and the people were suffering because the walls of Jerusalem were broken down, जब नहमाया ने सुना कि जहाँ उसके लोग और वहां के जो दीवार है टूटी पड़ी है, he fasted, he mourned, and he prayed to God. वो उपवास किया और
विलाप किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। So when he sought God and then while he was serving the king, जब परमेश्वर राजा का सेवा करते हुए उसने उपवास किया, so at that time the king is asking him, why are you looking sad? What is the reason for your sad countenance? तब उसका चेहरा देखकर राजा पूछ रहा है कि तू क्यों दुखी दिखाई दे रहा है, क्या बात है? So even at that time, immediately he doesn't reply. तब भी वो तुरंत ही उसने जवाब नहीं दिया He prayed to God. और परमेश्वर से प्रार्थना किया। While he was serving the king, he's praying to God. राजा का सेवा करते हुए भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। And then he's telling the king that about his people who are suffering back in Jerusalem. और उसके अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वहां दुख उठा रहे हैं यरूशलेम में। So he finds favor in the eyes of the king. वो राजा के नजर में अनुग्रह को प्राप्त किया। So in fact, he's an enemy king to the Israelites, but still God gave him favor through that king. असल में जो वो राजा जो है इजरायलियों का शत्रु राजा था, फिर भी नेहमाया को उस राजा अनुग्रह किया। So Nehemiah was able to fulfill his purpose. तो इसके कारण जो नेहमाया उसके उद्देश्य को पूरा कर पाया। Another biblical example is from the life of Ezra. और एक जो उदाहरण है इज़रा के जीवन से, So we read in Ezra chapter 8 verse 21. हम इज़रा 8वां अध्याय का 21वां वचन पढ़ते हैं। He fasted and prayed वो उपवास कर प्रार्थना किया for direction and clarity. अगुवाई के लिए और स्पष्टता के लिए। So the entire community of God, the Israelites, for that Ezra is asking for direction. और पूरा इजराइल समुदाय जो है परमेश्वर के पास अगुवाई के लिए मांग रहे थे। So he wanted to steward the resources in the right way. They had a lot of resources that the king had given them to go and build the temple. इजराइल के पास जो है राजा ने जो बहुत सी संसाधन दिए थे यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए, उसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए वे मार्गदर्शन मांग रहे थे। And another example from Ezra, we see that in chapter 9 verse 5, Ezra fasts for repentance of the people. तो और एक उदाहरण हम देखते हैं कि इज़रा 9वां अध्याय के 5वें वचन में जो लोगों के पश्चाताप के लिए, मन फिराने के लिए प्रार्थना कर रहा है। So he goes to God on behalf of the people. वो लोगों के लिए परमेश्वर के पास जा रहा है। The people have sinned as a community. लोग जो है समुदाय के रूप में पाप किए हैं। So he is crying out to God on behalf of his people. और इज़रा जो है अपने लोगों के लिए परमेश्वर के पास दुहाई दे रहा है। And we all know about Esther's fast. हम एस्तर के उपवास के बारे में अब सब जानते हैं। So she chose to fast for the deliverance of her people. वो अपने लोगों के छुटकारे के लिए उपवास करना चुनी। See, she did not fast alone. See, we understand that she called everyone, and as a community, she fasted even before going to the king. वो अकेले उपवास नहीं की, वो एक समुदाय के रूप में लोगों को बुलाई, उनके साथ मिलकर उपवास की राजा के पास जाने से पहले। So we understand that God has kept us as a community, as a family of God. So we need one another to support one another in prayers. हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो है हमें एक समुदाय के रूप में, एक कलीसिया के रूप में रखा है, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। And we also saw the example of Daniel. हम दानियल के उदाहरण को भी देखें। So his was also a lifestyle that he followed about fasting. उपवास के बारे में दानियल का भी जीवन शैली था वो। So he prayed the fulfillment of the prophecy of Jeremiah into fulfillment. वो जो है यिर्मयाह का जो भविष्यवाणी थी उसे पूरा होने के लिए उसने प्रार्थना किया। He knew God had spoken. वो जानता था कि परमेश्वर ने इसके बारे में बताया है। He prayed and he fasted. वो उपवास कर प्रार्थना किया And the prophecy was fulfilled. और प्रतिज्ञा पूरा हुआ। So he also fasted when he wanted understanding of the vision God was telling him about the future. और इस बात के लिए भी उसने उपवास किया, परमेश्वर ने जो भविष्य के लिए उसे जो दर्शन दिखाई थी उसे समझने के लिए। So these are few examples from the Old Testament. ये सब जो है पुराना नियम से कुछ उदाहरण है। So the best example from the New Testament, anyone can say what is the best example that we have from the New Testament? नया नियम से सबसे सर्वोत्तम एक उदाहरण है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? Praise God. Jesus. यीशु। So how many days Jesus fasted before 40 days? यीशु मसीह कितने दिन तक उपवास किए? 40 दिन। So Jesus fasted and we have an example in him to follow.
तो यीशु मसीह उपवास किए, हमारे पास यीशु मसीह में उदाहरण है। We saw his life of prayer. हम उनके जीवन, प्रार्थना जीवन को देखें। And before he began his public ministry, he fasted for 40 days and 40 nights. उन्होंने अपना सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया। And we see in the Acts of the Apostles, the early church fasted and prayed together. और प्रेरितों के काम में हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक कलीसिया जो है उपवास कर कर प्रार्थना की। So whenever they wanted to commission people as leaders or elders or send them for a specific purpose, we see that they fasted and they prayed. हम देखते हैं कि जब कभी उन्हें अगुओं को चुनना था या किसी कार्य के लिए, सेवकाई के लिए भेजना था, वो उपवास कर कर प्रार्थना कर कर इसका चुनाव किए हैं। Before the Apostle Paul was sent for the first missionary journey, they fasted and prayed and set apart Apostle Paul and Barnabas. हम पौलुस के पहला मिशनरी यात्रा में जाने से पहले हम देखते हैं कि जो प्राचीन लोग जो है उपवास किए, प्रार्थना किए और पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग किए। And there are several examples. We also see that Barnabas and Paul fasted and prayed before commissioning elders. हम ये भी देखते हैं कि जो प्राचीनों को काम देने से पहले बरनबास और पौलुस उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। And we see that the Apostle Paul fasted all along his ministry. और हम ये भी देखते हैं कि पौलुस जो है अपना पूरा सेवकाई में उपवास कर कर प्रार्थना किए हैं। So from the Bible, we understand that we are called to fast and pray. बाइबल से हम इस बात को समझ पाते हैं कि हम जो है उपवास कर कर प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। So while we are learning about this fasting, we should understand that all the blessing and promises mentioned in the Bible is already accomplished on the cross through Jesus. हम इसको सीखते हुए इस बात को समझें कि बाइबल में बताई गई आशीषें और प्रतिज्ञा जो है पहले से यीशु मसीह के द्वारा क्रूस में हासिल हो चुका है। So what we are saying while when we receive our blessings is we go and position ourselves correctly before God, so the blessings and promises are fulfilled in our lives. तो हम क्या कह रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सही स्थिति पे अपने आप को रखेंगे, तब जो है हमारे जीवन में उन आशीषों को हम प्राप्त कर पाते हैं। So we can never tell that, I fasted for 40 days, I fasted for 15 days, I fasted for a year, and that is why I received my blessing. हम कभी भी ये ना कहें कि मैंने 15 दिन के लिए उपवास किया, 40 दिन के लिए किया, साल के लिए किया, इसीलिए मुझे ये आशीष मिली है। So we are called to prepare ourselves, correct our posture before God, and position ourselves before God's presence in order to receive all the blessings He has promised us. हम इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने ठीक कर कर, सही स्थान में रखकर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक कर कर इसलिए करते हैं कि क्योंकि उन आशीषों को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए। So there are many blessings and promises that God has promised for us. We will see from verses 8 to 14 of Isaiah chapter 58. बहुत सारे आशीषों के बारे में परमेश्वर ने बताया है, आशीषों और प्रतिज्ञा के बारे में। हम जो है इस 58 अध्याय के 8 से लेकर 14 तक के वचन में इसको देखेंगे। We'll continue after the break. हम ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। धन्यवाद।